Today I'm going to teach you about fetal circulation. Fetal circulation is different from that of the adult circulation because in the fetus the function of the lungs, it is done by the placenta. So there is a difference in the fetal circulation. There are changes in the fetal circulation that we are going to see today. What all are those changes and how the fetal circulation takes place, and we'll see after the delivery of the fetus what all changes happens. Okay, so let us start with the fetal circulation. So सबसे पहले क्या है कि इस fetal circulation में कुछ structures जो है different होते हैं from adult circulation. तो क्या क्या structures different है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले है umbilical vein. Umbilical vein क्या होता है? Umbilical vein, it is carrying the oxygenated blood from the placenta to the fetus. So it is a vein that carries the oxygenated blood from the placenta to the fetus. तो placenta जो है वो काम करता है, the function of the lungs, it is done by the placenta. Now the other different structure is ductus venosus. So you can see here, ductus venosus क्या होता है? It is an opening between the umbilical vein and the inferior vena cava. Okay, so that is bypassed through the liver, and you can see here it is an opening that is between the inferior vena cava and the umbilical vein. ठीक है. नेक्स्ट है ductus arteriosus. ductus arteriosus क्या है? It is an opening between the aorta and the pulmonary artery. So यहाँ पर आप देख सकते हैं pulmonary artery और aorta के बीच में एक opening है जिसको हम ductus arteriosus कहते हैं. नेक्स्ट है foramen ovale. foramen ovale, it is the opening between the right atrium and left atrium. ठीक है. नेक्स्ट है umbilical arteries. So umbilical arteries क्या होती है? दो umbilical arteries है जो कि फीटल के बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करके प्लाजेंटा तक पहुंचाती है. सो देर आर टू अम्बिलिकल आर्टरी एंड वन अम्बिलिकल वेन इन द अम्बिलिकस ऑफ द फीटस. ठीक है. तो दिस आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन दैट इज़ ओनली फाउंड इन द fetal circulation. This is the flow chart. This I will explain. And fetal circulation, let us start how this fetal circulation takes place. So firstly you can see the placenta. The placenta, it here is the function of the lungs, function of kidney, everything takes place in the placenta itself. So exchange of this oxygen and carbon dioxide also takes place in the placenta. Okay, so from the placenta the oxygenated blood, it is carried to the fetus through umbilical vein. So you can see that the red one is the umbilical vein, so that carries the oxygenator. So here we can see again, so the umbilical vein, it is the only area where the fetus is having the oxygenated blood. Rest all places they are giving the डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ अम्बिलिकल वेन से किसको मिलता है? लिवर तक. लिवर तक जाता है. इट बाईपासेस द लिवर एंड देन इट कनेक्ट्स टू द इंफीरियर वीना कैवा थ्रू डक्टस वीनोसिस. ठीक है. डक्टस वीनोसिस हमने देखा था. तो डक्टस वीनोसिस के थ्रू जो ओपनिंग है वो अम्बिलिकल वेन जो है अब कनेक्ट हो जाता है इंफीरियर वीना कैवा से. और अब जो इंफीरियर वीना कैवा वो क्या कैरी कर रहा होता है? वो यूजुअली क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो अभी क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू आ रहा है. अब यहाँ पर होता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड. सो मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड इज़ नाउ फ्लोइंग. यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है कि द ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द foramen ovale. So foramen ovale is what? It is the opening between the right atrium and
लेफ्ट एट्रियम। सो इसके बीच में जो ओपनिंग है उसे हम फोरामेन ओवल कहते हैं। तो फोरामेन ओवल क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है वो बाईपास होके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक जाता है थ्रू द फोरामेन ओवल। सो यहाँ पर लाइक नॉर्मल सर्कुलेशन, नाउ देर इज़ अ डिफरेंस हियर। ओके, सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द राइट एट्रियम to the left atrium through foramen oval directly. Okay, so now you will be thinking how it is possible, how the oxygenated blood will be going there. So what is happening is the structure of this right atrium is such that there is a separation of the oxygenated and deoxygenated, but it is not completely. So most of the oxygenated blood, and it is also mixed one, less of the deoxygenated, most of oxygenated and less of deoxygenated blood, it passes from the right atrium to the left atrium through the foramen ovale. Okay, so from the left atrium it will go to the left ventricle, and from the left ventricle it will go to the aorta, and from the aorta it will go to the whole, the circulation takes place to the whole body, the blood. So maximum blood is supplied to the heart and then to the brain. Less oxygen is supplied to the extremities and legs. Okay, so now the blood that collects from the upper part, okay, it will returns to the right atrium in the superior vena cava, and also from the inferior vena cava it is coming. So from the inferior vena cava oxygenated blood is also mixed with the deoxygenated blood and it is coming to the right atrium. Okay, now what happens, from the right atrium it will go to the right ventricles as a normal circulation. So here what happens, according to the shape of this right atrium, what happens, the 25% of blood which is mixed with the oxygenated and nutrients which is necessary for the lungs, it goes to the right ventricles. ओके, सो नाउ यहाँ पर भी मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा जो कि 25% जो कि लंग्स को हमें प्रोवाइड करना है, तो उतना ऑक्सीजनेटेड, और बाकी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू द राइट एट्रियम. फिर नाउ व्हाट हैपन्स, इट विल गोज टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. Now only small amount of blood enters the pulmonary artery. Now what happens, because what happens कि lungs is not functioning here, lungs यहाँ पर function नहीं कर रहा है, so there is a pressure in the lungs. Okay, so only a less amount of blood will enter to the pulmonary artery and the remainder passes through the ductus arteriosus to the aorta. क्यों ductus arteriosus से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में चला जाता है? क्योंकि जो लंग्स है वो कोलैप्स्ड फॉर्म में है, यहाँ पर अभी लंग्स फंक्शनिंग नहीं है, जो एल्वियोलाई है वो फंक्शनिंग नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रेशर बहुत सारा प्रेशर है जिसकी वजह से लंग्स में कम्प्लीटली ब्लड नहीं जाता है. ये क्या करता है, वापस जो ब्लड है वो पास हो जाता है डक्टस आर्टेरियोस से डिसेंडिंग एओर्टा में. देन ब्लड कंटिन्यूज थ्रू द एओर्टा ऑल्दो द लो ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द रिमेनिंग ऑर्गन्स एंड लंग्स. ठीक है, तो लो ब्लड सप्लाई और लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाई टू द लंग्स एंड द रिमेनिंग बॉडी. देन इंटरनल इलियक आर्टरी देन लीड्स इनटू हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी. फिर उसके बाद जो इंटरनल इलियक आर्टरी होता है वो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी को लीड करता है. फिर यहाँ से वो जाता है अम्बिलिकल आर्टरी में, तो यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब कलेक्ट हो जाता है एंड इट गोज़ टू द अम्बिलिकल आर्टरीज, और अम्बिलिकल आर्टरीज से वो जाता है प्लाजेंटा. रिमेनिंग ब्लड सप्लाइज टू द लोअर लिम्स एंड रिटर्न्स टू द इन्फीरियर वेना केवा. तो बाकी जो ब्लड है वो लिम्स में, लोअर लिम्स में जाता है और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वापस से वो हार्ट में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है. ठीक है, सो दिस वाज द फीटल सर्कुलेशन इन अ होल. अभी आफ्टर द पोस्टनेटल, दैट इज़ जब डिलीवरी हो जाती है फीटस की, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं. सो यू कैन सी इन दिस इमेज व्हाट ऑल चेंजेस हैपन इज, सो जितनी भी ओपनिंग्स हैं
ductus arteriosus, ductus venosus, then foramen oval, इस सबको close होना. So as soon as when the fetus is taking a breath, जैसे वो सांस लेता है तो लंग्स इन्फ्लेट होती है. इसके वजह से जो गश ऑफ ब्लड है वो लंग्स में जाता है. इसके वजह से एक प्रेशर क्रिएट होती है. फोर्सफुली जो है जितने भी ओपनिंग है वो सब क्लोज हो जाते हैं. सो क्लोजर ऑफ फर्स्टली क्लोजर ऑफ फोरामेन, यू कैन सी द फोर्स ऑफ वीनस ब्लड. जो वीनस ब्लड है उसका जो प्रेशर है उसके वजह से यहाँ पर जो फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाती है. देन क्लोजर ऑफ डक्टस वीनोसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस. जैसे ही अम्बिलिकल वेसल्स को हम काटते हैं, द अम्बिलिकस इज कट, this ductus venosus closes. Then there is a closure of umbilical arteries, stop of umbilical vessels. Then there is closure of ductus arteriosus. The means that the blood is expelled from the right ventricles, has to go to the lungs. So there is a closure of the ductus arteriosus. So this is what is happening in the fetal circulation. बिफोर बर्थ कैसे सर्कुलेशन होता है फीटस में, और पोस्टनेटली जितनी भी ओपनिंग होती है वो सब क्लोज हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर. बिकॉज लंग्स अब क्या करने लगता है, फंक्शन करने लगता है. और जो प्लाजेंटा से जो कनेक्शन है अम्बिलिकस का उसे हम कट कर देते हैं. एंड नाउ द सर्कुलेशन गोज़ लाइक दैट ऑफ द अडल्ट सर्कुलेशन. चलिए अब मैं आपको एक और बार लास्ट में इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ. तो द फीटल सर्कुलेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लाजेंटा वेयर द फंक्शन ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस. तो दैट इज़ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स. सो हियर द अम्बिलिकल आर्टरी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होके अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो है प्लाजेंटा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू that will goes to the fetus, and then it enters into the liver where it bypasses through the liver into the inferior vena cava through an opening which is called as ductus venosus. So umbilical vein से वो जाएगा liver में, liver में oxygenated blood देगा, और ductus venosus जो कि एक opening है umbilical vein और inferior vena cava के बीच में, तो इस opening से वो जाता है inferior vena cava में. अब inferior vena cava में deoxygenated blood है जो कि lower limb से आ रहा है. अब यहाँ पर हो जाता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. अब ये डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड मिक्स टाइप ऑफ ब्लड ये जा रहा है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से it will go to the left atrium, that is most of the oxygenated and less of deoxygenated blood. It will go to the left atrium through the foramen oval. फिर लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा एओटा में, एओटा से वो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में. वहीं राइट एट्रियम में जो बाकी बचा ब्लड है जिसमें 25% ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट्स है वो राइट एट्रियम से जाएंगे राइट वेंट्रिकल में. मोस्ट ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड एंड लेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द राइट वेंट्रिकल्स. अब राइट वेंट्रिकल्स हो जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से वो जाते हैं लंग्स में. तो ज़्यादातर ब्लड नहीं जा पाता है लंग्स में, क्योंकि लंग्स यहाँ पर फंक्शनिंग नहीं है, लंग्स के एल्वियोलाई सब फंक्शनिंग नहीं है. तो यहाँ पर लंग्स में एक प्रेशर है जिसकी वजह से ज़्यादातर ब्लड नहीं जा पाता, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है जो कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए. उसके बाद जो बाकी ब्लड है वो थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसिस वो चला जाता है एओटा में, और एओटा से वही सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है. फिर उसके बाद वो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपर पार्ट से वो सब लेके आके वो अम्बिलिकल आर्टरी में जाता है. अम्बिलिकल आर्टरी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वापस प्लाजेंटा में जाता है, एंड नाउ द सर्कुलेशन इट कंटिन्यूस. ठीक है. सो दिस is happening in the fetal period, the fetal circulation. ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है. आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा. So thank you students. Hope you all have understood fetal circulation. See you in the next class.